Okay, so we start, or we are, or else we are going to continue with the chapter what we did previously. Previously, I had shown you the graph related to melting and boiling. ग्राफ बताया था 0 डिग्री से ऊपर तक जा रहा है, A to B जा रहा है, और उसके बाद में वो वापस से चेंज हो रहा था. Am I कहाँ पर हूँ मैं? हाँ, ओके. तो the graph was something like this. ये ग्राफ जा रहा था, ये दोनों ग्राफ था. It was moving in a straight across inclined way. That was your from A to B. उसके बाद में there was a sharp parallel line to x-axis, which was the phase where the heat was being absorbed, but there it was not recorded on the thermometer. Thermometer में अभी भी 100 degrees ही है. अगर ये A point को I have taken 0 degrees, B point is at 100 degrees, so it will go up to 100 degrees. वो thermometer में दिखाई देगा that it is moving up to 100 degrees, and after that 100 degrees for some time it remains constant, and then it gets completely, मतलब ये क्या हुआ, आपने solid को liquid में convert कर रहे हो आप. तो यहाँ पर ये melting का process चालू है. मेल्टिंग का प्रोसेस चालू है. मेल्टिंग का प्रोसेस चालू होना यानी ये सब छोटा बच्चे लेवल का बता रहा हूं. सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर. नाउ द लिक्विड स्टेट, द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मूव फार अवे. सो दिस फेज फ्रॉम बी टू सी, एज इफ बी टू सी, यहां पर क्या हो रहा है, द मॉलिक्यूल्स आर ट्राइंग टू ब्रेक देयर बॉन्ड एंड सेपरेट आउट. So this is the phase from B to C, जहां पर it will get completely converted from solid to liquid phase. So this constant temperature phase will be now called as, अच्छा, it is, since it is not recorded on the thermometer, can I say it is a hidden heat? Hidden heat. So this hidden heat itself is called as your latent heat. चलेगा? Called as a latent phase. अब ये दो चीज में काम आएगा. एक तो at the time of boiling, यानी melting, sorry, और दूसरा at the time of when the vapors are formed, when liquid is changing to gas. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, it is a latent heat of vaporization एक, और latent heat of fusion, where the ice is getting converted to liquid or liquid to ice. उल्टा भी हो सकता है. Okay, let us start reading. Someone from there? Someone from there? Yes, sir. Yeah, louder. Hello, sir. Yeah. Sir, do I read? Yeah, read. Latent heat and specific latent heat. We have read that during एक मिनट, यहाँ पर ये वापस से आ गया, latent और specific latent. पहले हम लोगों ने पढ़ा था latent नहीं, heat capacity पढ़ा था और heat specific heat capacity पढ़ा था. लिख रहा हूं यहाँ पर एक बार. हम लोगों ने पढ़ा था heat capacity and specific heat capacity. What was the basic difference between these two? So in specific heat capacity, a unit mass was considered. वो वर्ड चुप रहे हो तुम लोग. एक वर्ड चाहिए उधर का. Unit mass was considered in specific heat Unit mass was considered. ये कौन था? कौन था ये? Sir, मैं रीना हूँ. Okay. तो इसका मतलब when we say heat capacity, it means the whole body is considered at a time. That is the total amount of heat which is taken up. Specific heat means heat taken up by a unit mass. तो यहाँ पर भी unit mass ही होगा. Latent heat, total heat. Read out, Preksha. Yes, sir. We have read that during the change of phase of a substance which takes place at a constant temperature, a considerable amount of heat energy is absorbed or liberated. Heat energy is absorbed by a solid during melting, and an equal amount of heat energy is liberated by the liquid during freezing, without showing any change in temperature. Similarly, चाहे वो मेल्ट हो रहा है, चाहे वो फ्रीज हो रहा है, it is not shown on the thermometer without showing any change in the temperature, that is in the thermometer. Similarly, when the heat energy is absorbed, heat energy absorb कर रहा है कोई, मतलब ले रहा है. Okay, ले रहा है by a liquid, means liquid is taking the temperature. Liquid अगर temperature ले रहा है, मतलब वो क्या फॉर्म करने वाला है? gas. Vapor फॉर्म करने वाला है, तो उसको मैं vaporization बोलूं? Yeah. Similarly, heat energy is absorbed by a liquid during vaporization, and an equal amount of heat energy is liberated by the vapor
ड्यूरिंग कंडेंसेशन। अच्छा, मतलब कंडेंसेशन उल्टा हो गया उसका। व्हेन लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वेपर, तो वेपराइजेशन, और वेपर्स को वापस से लिक्विड में आना है तो वो कंडेंस करेगा, इसके लिए द प्रोसेस विल बी कंडेंसेशन। चलेगा? चलेगा? Yes, sir. ओके, विदाउट शोइंग एनी चेंज इन द टेम्परेचर। चलो प्रोसीड फर्दर। Since the heat energy absorbed or liberated in change of phase is not externally manifested by any rise or fall in temperature, it is called latent heat. हिडन हीट और लेटेंट हीट। Latent heat, when expressed for unit mass of a substance, For unit is mass, if you are expressing the same thing for a unit mass, then it will be called as specific called latent as heat. Specific चलेगा। latent. Specific latent heat. अरे वाह, कोई बाजू में बैठा है एकदम इसके? नहीं, ये तो घर से ही बोल रहे हैं ना ये लोग। हाँ बोलो, कंटिन्यू। Yes, sir. It is the characteristic property of the substance depending on its composition and is different for different substances. ओके, लेटेंट हीट मतलब एक्चुअली लेटेंट हीट वो लोग ने क्या बताया? स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या बताया वो लोग ने? कि इट इज द अमाउंट For a ऑफ mass हीट unit. एनर्जी विच इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। हीट एनर्जी, क्या डिनोटेशन था हीट एनर्जी का? Q. But it is said to be per unit mass. Per unit mass तो upon m, which is equal to latent heat. नहीं, sorry, it is specific latent heat. Specific latent heat, क्योंकि per unit mass आ गया, तो उसके लिए the denotation is capital L. Per unit mass. हाँ, तो नीचे देखना उधर पे देख, पहले का पार्ट देख। L is equal to heat absorbed for the change upon mass. Work specific latent heat. Specific latent heat. So, It is a specific latent. तो वही तो लिख रहा हूँ मैं। पर अरे पर सर आप बोल रहे यूनिट मास है ना? Per unit mass, per mass। इसमें मास ही दिया है। अरे वही अभी डेफिनेशन आएगा ना, उसमें देख ले। Okay, so if I cross multiply this, Q will be said to be M into L. This will be useful for solving problems related to calorimetry. Okay, proceed further. Yes, sir. Specific latent heat is denoted by the symbol capital L. Thus, specific latent heat L is equal to heat absorbed or liberated for the change of phase upon mass. If amount of heat energy Q is absorbed or liberated by the mass M of a substance during its change of phase at a constant temperature, then specific latent heat L is equals to Q upon M. Thus, specific latent heat एक मिनट। L is equal to Q upon M. Q मतलब क्या है? heat absorbed or हीट एनर्जी का liberated. यूनिट क्या है? Joules. जूल। Joules. और मास का kg. kg। Therefore the unit for latent Joule per kg. per kg। चलो आगे का हो गया। डेफिनेशन वापस से पढ़ लो। The specific latent heat of a phase is the quantity of heat energy absorbed or liberated by the unit mass of the substance for the change in its यूनिट phase. मास, एक मिनट, एक की आत्मा को शांति। समझा? तेरे लिए ही बोला। यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फॉर द चेंज इन इट्स फेज। चेंज इन फेज बोलेंगे तो आइदर सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड टू गैसेस भी हो सकता है, या रिवर्स भी हो सकता है, बट ऑल ऑफ देम टेकिंग प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। Constant temperature. थैंक यू। पढ़ने का ना? Unit of specific latent heat. The SI unit of specific latent heat is joule per kg. Other common units are calorie per grams and kilocalorie per kg. They are related as 1 kilocalorie per kg is equals to 1 calorie per gram. 1 calorie per gram is equals to 4.2 joules per gram, or 1 calorie per gram is equals to 4.2 into 10. सिर्फ इतना याद रखने का है, जूल्स पर केजी, कैलोरीज पर ग्राम, किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। उसका कन्वर्शन विल बी यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल पार्ट, एंड दिस आर ऑल बोर्ड क्वेश्चंस। ऑल दिस कन्वर्शन एंड यूनिट पार्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। ये चैप्टर में से मैक्सिमम यूनिट्स और यही सब पूछा जाता है। ओके, अभी थोड़ा चैप्टर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम लोग ने बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक बोला था फ्यूजन, और दूसरा बोलेंगे वेपराइजेशन। अभी जब मैं फ्यूजन बोल रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? फ्यूजन। Freeze.
आइदर मेल्टिंग और फ्रीजिंग, Liquid. वो फेज ड्यूरिंग ये सब हो रहा है. मतलब यू मीन टू से सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू Solid. सॉलिड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट 0 डिग्री. इसमें गैस एंड Zero degree कोई कैसा होगा? वाटर के लिए मतलब सर इसमें गैस एंड Vaporization में आता है ना, दो भाग बनते हैं ना, वेपर. ओके, दो भाग में बनता है ना. ठीक है ठीक है. रीड करना प्रेक्षा, कितनी बार बोलने का. सर आपने कहाँ पे बोला? मैं अरे कितनी बार बोला, बोल बोल फटाफट बोल. अभी इसमें हाईलाइट कर देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल रही है तू. मेल्टिंग तो कौन मेल्ट होता है? आइस. किसमें? ओके, तो वही लिखा होगा. मेल्टिंग ऑफ आइस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट. कितना? यूनिट मास. क्या? आइस विच इज एट 0 degree. 0 degree sir. और टू वाटर एट 0 डिग्री विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर. उसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्यूजन. तो यहाँ पर उल्टा लेंगे. फ्रॉम very good. The specific latent heat of fusion of ice is that amount of heat energy released when a unit mass of water which is at 0 degree ultimately freezes and becomes ice again at 0 degrees without any change in the temperature. Getting it? Yes, sir. Yes sir. रिनव तो अकेला मतलब बैठा है आइस क्या? से कितने वाटर में? में भी 0 पे आ रहा है और फ्रॉम वाटर टू आइस भी 0 पे आ रहा है. Yes, yes. 0 to 0 until the time when it gets completely converted from liquid to solid or solid to liquid. Here we are not staying somewhere in between from 0 to 4 degrees. उसका एक अलग पैरामीटर आ जाएगा, anomalous behavior of water. Here we are studying about the total behavior of water. क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है सर, 0 से 0 जा रहा है, लेकिन हम लोग ने 9th में anomalous behavior सुना था. But this chapter we are dealing mainly with water related issues. Okay, okay. Water Common mainly behavior, ice, mainly ice. So without any change in temperature इसके लिए वो दिया है ना. But density उसका उस टाइम पे मैक्सिमम होता है. बस जा नहीं पाएगा ना, तो फ्लोट ही करेगा. डेंसिटी मैक्सिमम हो गया तो वो फ्लोट करने वाला है, नीचे जा ही नहीं पाएगा. क्या होता है सर? वो एनोमस बिहेवियर होता है ना. उसको मेल्ट हो रहा है ना, डेंसिटी कम हो रहा है, फ्रीज में जा रहा है, वो आइस फॉर्म कैसे जा रहा है? वो भी लाइट ही तो है बाहर का टेम्परेचर से. पर वो वाटर से तो लाइट है ना, वाटर से लाइट है ना 0 डिग्री से. नहीं, पहले फॉर्म तो होने दे. आइस तो आइस बनाने का बोल रहा है. हाँ 0 पे सब तो आइस बन गया तो वो लाइट होता है 0 पे आइस नहीं बनेगा. आइस बनने के लिए देख कितना लग रहा है. देखो द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर आस्क्ड इन एग्जाम. रीड करना प्रेक्षा. Yes So sir. No. according to the explanation अभी हम लोग देख रहे थे, तो मेल्टिंग और क्या बोला था हम लोग ने? मेल्टिंग और फ्रीजिंग का पॉइंट सेम है. वैसे ही वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का पॉइंट सेम है. बराबर, तो वही पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर. फॉर अ प्योर सब्सटेंस द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज सेम एज दैट ऑफ मेल्टिंग. बराबर है. अब जब हम लोग न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे या तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, तो जस्ट इमेजिन कि इतने सारे हीट की जरूरत पड़ती है. फॉर आइस, रीड कर. For ice, the specific latent heat of fusion is 3,36,000 joule per kg, which is equals to 80 calorie per grams. It means that 1 ये kg जरा of ice. डीपली सोचते सोचते रीड करना. ये क्या लिखा है देखो जरा. इट मीन्स दैट अगर मैं 1 kg ऑफ आइस लेता हूं, उसको मुझे मेल्ट करना है एट 0 डिग्री, तो उसको कितना हीट की जरूरत है? इट विल एब्सॉर्ब अबाउट 3,36,000 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू कन्वर्ट इनटू वाटर व्हिच इज एट 0 डिग्री. तो सोचो उसके अंदर कितना स्टोर्ड एनर्जी है. यानी उसको बनाने के लिए और उसको मेल्ट करने के लिए भी इतना हीट सप्लाई करना पड़ेगा. अभी यही चीज ध्यान में रखो, मैं रिपीट कर रहा हूं. इतना हीट एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, तभी जाके वो कंप्लीटली मेल्ट होगा. सर मतलब उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एक साथ ज्यादा बॉन्ड में होंगे ना, मतलब ज्यादा वो होंगे, क्या कहते हैं, क्योंकि इतना हीट लग रहा है. माउंटेन के ऊपर क्या होता है?
स्नो होती है। I Glacier. और ऑलरेडी हायर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम रहता है। तो अगर ये आइस को मुझे मेल्ट करना है तो पहली बात तो आई नीड दिस मच हीट एनर्जी। कितना हीट एनर्जी? 3,36,000। इतना हीट मिलेगा एक साथ में इसको? That is the reason why all the snow on the mountain does not melt at the same time. Melt होगा थोड़ा थोड़ा। सोचो अगर एक साथ में मेल्ट हो गया तो केदारनाथ। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। I will sir, I will तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पूरा स्नो मेल्ट होगा, फिर वो बाढ़ है। बोलने की तो ग्लोबल वार्मिंग से इतना हीट एक साथ में मिलने वाला है तेरे को? ग्लोबल वार्मिंग होगी वो ज्योग्राफी। ग्लोबल वार्मिंग तो रोज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग रोज हो रही है। उसके वजह से वो आइस मेल्ट हो अरे जाएगा। सर ये बोल रहे हैं फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर रहा है तू, अभी नहीं। हाँ बोल। सर ये बोल रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा तब। सर मेरे को पूछना है अभी वाटर का जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है कितना वाटर मेल्ट होता है। आइस जब मेल्ट होता है तो सर और कितना लिखा और कितना एनर्जी चाहिए होगा कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस में राइज हो टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री? नहीं, पहले तो 336,000 एनर्जी मिलेगा तभी जाके वो पहले तो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में एक बार वंस इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वाटर और लिक्विड देन द टेम्परेचर राइज विल बी सीन। मतलब वापस और एनर्जी। हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट साइकिल में आ गए, वेपराइजेशन के साइकिल में। सर एनर्जी चाहिए ना इसका? हाँ, एनर्जी तो देंगे ना हम लोग। सर इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी में खाली 1 केजी आइस मेल्ट होता है। तो सोचना स्नो मेल्ट नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, सर नहीं। वेपराइजेशन और फ्यूजन का सेम होता है, मतलब इतना ही जो 336,000 Yes. जूल। वाटर का भी आगे आगे लिखा है ना, देखना इधर ऑफ 1। अच्छा, अगर 1 ग्राम और रीड करना। In other words, हाँ, 1 gram of ice at 0 degrees absorbs 80 calories of heat energy to convert into water at 0 degrees. In other words, वापस से 1 kg of water which is at 0 degrees will liberate, will give out इतना एनर्जी उसको देना पड़ेगा to convert into ice. Or 1 gram of water will liberate 80 calories of heat energy to convert into ice. ये क्या लिखा? पढ़ दो वापस से, ये पढ़ दो। 1 kg। हाँ sir. 1 kg of water at 0 degree Celsius will liberate 3,36,000 joule. लिबरेट बोल रही है तू? हाँ sir. लिबरेट बोल रही है? give up. Release. दे रहा है ना? ओके ओके। हाँ, Will liberate 3,36,000 joule of heat energy to convert ice at 0 degree Convert? Celsius. convert Ice. convert into Ice. at 0 degree Celsius. Or 1 gram of water will liberate 80 calorie of heat energy to convert into ice at 0 degree Celsius. आइस ब्लॉक्स। अचानक समर सीजन चालू हो गया, क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, Melt. थोड़ा ही मेल्ट होगा। नहीं सर हाँ बोल, सीओ नहीं है ये। सर बोल। कोई भी चीज की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो मतलब अगर हम लोगों ने उसको वो हीट कैपेसिटी के एक ऊपर अगर हीट नहीं किया तो हो सकता है ना कि नहीं, मतलब वो हिंदी में बात कर। सर मतलब कोई भी चीज की एक हीट कैपेसिटी होती है, तो अगर हम लोगों ने वो हीट कैपेसिटी के अगर उसको ऊपर हीट नहीं किया तो हो सकता है ना कि इसीलिए वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है। बच्चा, तेरा जो डाउट है ना, तू हर एक सब्सटेंस को एक साथ में कंसीडर कर रही है। वी आर एट प्रेजेंट कंसीडरिंग ओनली स्नो, आइस, वाटर, वेपर, बस। अच्छा अभी मेरा क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है, मैंने आइस के स्लैब्स बनाए हुए हैं
और समर सीजन मैंने चालू कर दिया है, बारिश का सीजन खत्म, गर्मी का वैकेशन चालू, हाँ सर तो अभी क्या होना चाहिए? मेल्ट होना चाहिए आइस मेल्ट क्यों मेल्ट होगा? होना चाहिए। सर क्योंकि मेल्ट नहीं गर्मी, होगा। हाई गर्मी, Sir, हाई मेरे गर्मी। को नहीं था, क्या लिखा? 1 kg of water at 0 चुप बैठना तू, कुछ भी पूछता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि वो हीट एनर्जी दे रहा है, अगर दे रहा है, अरे चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला गया है देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट, तो दे रहा है तो कोई ले भी तो रहा है ना, हाँ सर तो इसको हीट कहाँ से मिल रहा है? सन से बराबर है ना, तो वो क्या देगा? क्या देगा? आइस क्या देगा? हीट लूज देगा। करेगा। हाँ हीट लूज करेगा। आइस कौन सा हीट देता है, गर्मी वाला या ठंडी वाला? ठंडी वाला ठंडे अच्छा, तो वाला। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जहाँ पर भी आइस मेल्ट हो रहा है वहाँ का सराउंडिंग एकदम मस्त हिल स्टेशन बन जाएगा। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। सराउंडिंग्स विल बिकम कूलर। वहां पर किधर बर्फ है? बारिश से वहाँ पे खत्म। I need to say when the ice is supposed to be melted, it is going to lose 336,000 joules of energy. इसका मतलब आजू बाजू का एनवायरमेंट इतना ठंडा ठंडा हो जाएगा। Ice is taking the heat energy at higher temperature, and that means it is losing energy. It is giving out cold energy, freezed energy. तो उसके अंदर का जो भी freezed energy है, when it is giving out cool air, and it is taking the heated part of the air. Getting it? Okay. ये भी अपना एक give reason हो जाएगा। Thank you very much. आगे ट्रांसपिरेशन में भी आगे? ऐसा ही होता है ना सर, मतलब उसमें भी आगे? मतलब ज्यादा पौधे लगाते तो होते हैं। एक मिनट, अभी थोड़ा मैंने एक्चुअली गिव रीजंस भी मैंने कवर कर लिया यार अननोइंगली। सर तो आंसर कर सकते हो ना अभी क्वेश्चन, हाँ टाइम है ना एक्स्ट्रा अपने पास। हाँ, अभी खत्म किधर हुआ अभी तक चैप्टर? तो आपने बोला ना रिवीजन हो गया है। नहीं मतलब अरे एक रिवीजन हो गया हमारा। सर टेबल पढ़ू? हाँ, पढ़ दो जरा। यस सर। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आवाज नहीं आ रहा है, अबे आवाज स्लो क्यों हो गया? नहीं सर specific latent heat of fusion of some common substances. Mercury 3 calorie per gram, joules per 12.5 into 10 raised to 3 joule per kg. Sulfur 9 calorie per grams, 37.7 into 10 raised to 3 joule per kg. पका मत जाने दे अभी, वो सिंपल है ना, इतना एनर्जी की जरूरत है तो इतना एनर्जी यूज कहां पर हो रहा है? टू सेपरेट आउट द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, यानी फोर्स ऑफ जो बॉन्डिंग है वो उसको फ्री करने के लिए। तो दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स और सेपरेट द मॉलिक्यूल्स सो दैट इट कैन चेंज इनटू द अदर फेज। चलेगा? चलेगा? ओके। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। पहला सर एक्सप्लेनेशन ऑफ तो ये बाकी लैटेंट है और टेबल कुछ? के नीचे सर, टेबल के नीचे। एक्सप्लेनेशन ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वो देखो ना, 11.5 हाँ सर, टेबल के नीचे। अच्छा तो वही ना, अभी तो बोला मैंने मॉलिक्यूल्स आर थ्रोन अवे और वो हाँ रीड कर ले तू फटाफट चल। Explanation of latent heat of melting on the basis of kinetic model. According to the kinetic model, the molecules in a solid vibrate about their mean positions. मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग, मतलब देयर इज काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. ओके। The total energy of a molecule is the sum of its kinetic energy due to its motion, which depends on the temperature. And कितना its टेम्परेचर दोगे, जितना ज्यादा हीट करोगे उतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा मॉलिक्यूल्स। ओके। एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? स्टोर्ड एनर्जी। हाँ, दो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखा हुआ है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब तक पोटेंशियल एनर्जी है तब तक वो अट्रैक्टेड है, लेकिन जैसे उसको हीट करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तभी तो वो बॉन्ड फ्री होगा। इसका मतलब बोथ द थिंग्स आर इन पिक्चर। लालबाग वाले इधर सब लोग खा रहे हैं। स्नैक्स चल रहा है। हाँ बोलो। and its potential energy, which depends on the और force कुछ of लोग मोबाइल देख रहे हैं, मैसेजेस पढ़ रहे हैं। हाँ बोलना। and its potential energy, which depends on the force of attraction between the molecules and the separation between them. When a solid changes into a liquid, When a solid changes into liquid without any change in temperature, the average kinetic energy of molecules do not change. इसके लिए तो थर्मोमीटर में कोई चेंजेस दिखाई नहीं दिया।
अभी तू बाद में डाउट पूछेगा ना, मैं कुछ आंसर नहीं करने वाला हूँ, अभी तो तेरे को नहीं गया, तू गया but the separation between the molecules on an average increases. Yeah, separation increases, and that's why it is getting completely converted to other phase. Some energy is always required for increasing the separation against the attractive force of the molecules. मतलब kinetic energy बनने के लिए potential energy को break या फिर lose करना पड़ेगा between the molecules. That is for the increase in ये increase in the potential energy of the molecules. Since the ज्यादा बटन दबा दिया. Since the increase in volume is negligible. Last time पढ़ा था शायद 1 gram 1 centimeter cube of ice changes to 1.091 point के बाद बहुत slight increase in the volume होता है, लेकिन होता है. So since increase in volume is negligible, so no heat is used in volume expansion. ऐसे consider करेंगे, but actually it happens. Thus the heat supplied during melting is utilized only in increasing the potential energy of the molecules, and therefore it is called as the latent heat of melting. ये मैंने already बता दिया आपको. 336 joules of energy is required to make the molecules to vibrate, that is to come into motion. Excuse me, sir. बोल दे. सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रहा है? लाइक मॉलिक्यूल्स तो और दूर जा रहे हैं और वाइब्रेट फास्ट हो रहे हैं ना, और तो काइनेटिक बढ़ना चाहिए ना. During that phase जहां पर when there is no change seen on the thermometer, the energy is being taken up and stored. It is not seen on the thermometer, so it is as if it is stored, so we call it as a potential energy. Okay. So here during that flat line phase, the heat energy is taken up, just taken up and just taken up. So it is being stored so that it gets completely converted from one form to another. Since it is stored, it is potential energy. सर अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता तो फिर हमको क्या चेंजेस मिलते देखने को? जैसे पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज फिर वो हो रहा है फ्लैट तो लाइन नहीं मिलता दोस्त, तो फिर वो फ्लैट लाइन नहीं मिलता, तो टेम्परेचर तुरंत आपको थर्मोमीटर में टेम्परेचर नहीं चेंजेस सर, मैं दिखाई ये देता. पूछ रहा हूँ कि आइस में कैसे चेंजेस दिखते हैं? लाइक इसमें आया कि आइस चेंजेस टू वाटर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर. चेंज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होता तो क्या होता? काइनेटिक एनर्जी अगर वो चेंज होता काइनेटिक एनर्जी तो क्या चेंज होता है? इसमें क्या चेंजेस आते हैं? फिजिकल कैसा दिखता वो? फिजिकली तो वो फटक से मेल्ट हो जाता था, तुरंत मेल्ट हो जाता था, उतना लंबा फेज नहीं लेता. वो था ना फेज बनाया था A to B B to C का, जो इतना लंबा फेज था कांस्टेंट टेम्परेचर का फेज, वो कांस्टेंट टेम्परेचर का फेज ही नहीं आएगा. वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, इसके लिए वो कांस्टेंट फेज आया. और सर जो ट्रांसपिरेशन में जैसा होता है, ट्रांसपिरेशन क्या? में वाटर चेंजेस टू ट्रांसपिरेशन में वाटर चेंजेस इनटू गैस, उसका बायोलॉजी कूलिंग इधर काय इफेक्ट को लाया तू? सर क्योंकि मतलब वैसे लास्ट में हमने पढ़ा था ना कि हिल स्टेशन में ठंडी होती है क्योंकि वो हीट अब्सॉर्ब कर देते हैं, वैसे ट्रांसपिरेशन में भी ऐसा ही होता है ना? ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, एक मिनट सुनो जरा, अभी इसका डाउट बनाते हैं, बोलो. वाटर जो होता है वो गैस में चेंज होता है, तो फिर लाइक हीट एनर्जी उसमें भी ऑब्जर्व होती है ना, तो फिर सेम ही मतलब एब्जॉर्ब अब्सॉर्ब होगी. होती है तो कूलिंग इफेक्ट आएगा. हाँ, तो इसमें भी वैसा ही होता है ना, हिल स्टेशंस में भी मतलब जो ग्लेशियर्स होते हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं हीट और फिर कूलिंग इफेक्ट डालते हैं. हाँ, तो वही तो फर्स्ट ड्यू रीजन है तेरा. नहीं, मैं से कंफर्म कर रहा था ट्रांसपिरेशन में ऐसा होता है. थैंक यू वेरी मच कंफर्मेशन के लिए. तो अच्छा पढ़ फटाफट. स्नो ऑन माउंटेन डज नॉट मेल्ट All All at at once. once. क्योंकि इसको इतना सारा हीट एनर्जी का जरूरत पड़ने वाला है, एंड एट अ टाइम उसको तो इतना हीट मिलने वाला नहीं है, सो द कंप्लीट आइस कैन नॉट मेल्ट एट द सेम टाइम. पढ़ तो जरा. The reason is that ice has a high specific latent heat of fusion equal to 3,36,000 joule per kg. It is due to this fact that it changes into water slowly as it gets heat energy from sun. If latent heat of ice had been low, all the snow would have been melted in a short time on getting heat from the sun, and there would have been flood in the rivers and no water ओके, after that. समझ में आ गया इसका गिव रीजन? हाँ sir. हाँ सर. In cold countries, water in lakes and ponds do not freeze at once. Sir, we मेरे को doubt है. पूछ रही है. होता है ना, तो it happens layer by layer.
the upper surface of the lake is in contact with the surrounding atmospheric temperature. भले ही winter है तो it is absorbing the heat energy and the upper layer of the water freezes and ultimately becomes a ice slab. Entertainment देखा entertainment picture हाँ सर हाँ सर बराबर ना, डॉगी अंदर चला जाता है वो, हाँ सर तो पूरा आइस का लेयर फॉर्म हो जाता है. बट सर पानी नीचे तो पानी है, हाँ Anomalous behavior. Yes. हाँ दैट इज एनोमस बिहेवियर ऑफ वाटर, लेकिन अंदर पानी है. बराबर है, क्यों? क्योंकि आइस है ना ऊपर, इज अ conductor है. इंसुलेटर और एक्ट्स एज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी. इसके लिए फर्दर लोअर टेम्परेचर हीट एनर्जी इज नॉट बीइंग सप्लाइड टू द lower part of the ponds and lake. Only the upper surface freezes. So once there is a bad conductor layer of ice, the lower surface will remain below 0 degrees. तो सर वो भी इसमें नहीं होता लोअर Bad conductor, और धीरे धीरे होगा, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो होगा, but we are in India, we'll talk about India. The reason is that, बोलना परीक्षा, तो मेरे को डाउट था कि अगर सॉलिड्स हाँ सॉलिड्स सर मेल्ट होके तेरा आवाज सर अमिताभ भैया बच्चन डाउट जैसा आ रहा है. पूछिए सर भैया डाउट पूछ रही है. हाँ तो वही आवाज तो लेकिन क्लियर आना चाहिए. सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन बराबर, मतलब आवाज, हाँ बोल बोल तू, एक मिनट आवाज कम करो ना. हाँ हाँ बोल. सर. सर अगर सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे तो यहाँ पे लिखा है कि उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वो कैसे? सर वो बोल रही है अगर Increase सॉलिड होना लिक्विड चाहिए. में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होता है? बोला ना, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है सर, Volume वॉल्यूम increase इंक्रीज नहीं नहीं. It is very negligible. It happens, but it is very negligible. ओके सर. Okay, Sir, आगे. In cold countries, बोलना रे, रीजन तो बोल. हाँ सर इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इन लेक्स एंड ponds Louder. does not freeze all at once. The reason is that the specific latent heat of fusion of ice is sufficiently high, which is equals to 336 joule per grams. The water in lakes and ponds will have to liberate a large quantity of heat to the surroundings before freezing. The layer of ice formed over the water surface, being a poor conductor of heat, also prevents the loss of heat from the water of the lake. Hence, the water does not freeze all at once. This या मतलब बाहर का टेम्परेचर कुछ अलग है और पानी का टेम्परेचर कुछ अलग है. अगर दैट वाटर इन द लेक्स एंड पॉन्ड्स हैव टू बिकम आइस, इट हैज टू लूज दैट मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी yes sir, टू गेट कन्वर्टेड टू आइस. yes sir. बट 336,000 इतना हीट लूज करने में कितना सारा टाइम लगेगा. इसके लिए ओनली द अपर लेयर फर्स्ट बिकम्स अ Ice. आइस एंड Yes, sir. अभी डबल फैक्टर काम कर रहा है. एक तो लूज करने में, जो लोअर लेयर है उसको लूज करने में टाइम लग रहा है, और प्लस ऊपर से एक बैड कंडक्टर का लेयर भी आ गया तो वो लूज होने भी नहीं दे रहा है. इसके लिए नीचे का पानी जो है वो पानी ही रहेगा, एंड दैट्स व्हाई द एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव अंडर वाटर. फर्दर, This property is very important for the survival of aquatic life. ये भी लिखा है इधर मेरे हाँ सर हम लोग के बुक में है. Drinks get cooled more quickly by adding pieces of ice than the cold ice water. एक ग्लास पानी के अंदर पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, उसको ठंडा रखना है ज्यादा टाइम के लिए, तो उसके अंदर ठंडा पानी डालू के आइस डालू. Ice. आइस डालेंगे, क्योंकि आइस जैसे ही डालेंगे तो ही बोल 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 बोल. आइस जो है वो अपना हीट धीरे धीरे से लूज करेगा, और जितना टाइम धीरे धीरे लूज करते जाएगा उतना टाइम कोल्ड ड्रिंक ठंडा का ठंडा रहेगा, बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ आइस इज वेरी हाई. सेम रीजन. बोलो This is परीक्षा. because, yes sir, this is because 1 gram of ice at 0 degrees Celsius takes 336 joules of heat energy from the drink to melt into water at 0 degrees Celsius.
Thus, the drink liberates an additional 336 joule of heat energy to 1 gram ice at 0 degrees Celsius, then to 1 gram ice cold water at 0 degrees Celsius. Therefore, cooling produced by 1 gram ice at 0 degrees Celsius is much more than that by 1 gram water at 0 degrees Celsius. Yeah, because of the value difference, the heat energy liberated in case of ice is more as compared to cold water. ये भी मैं बता चुका हूँ. When ice is in a frozen lake starts melting, its surrounding becomes Very cold. cool. Cold. बोलो. The reason is that quite a large amount of heat energy is required for melting the frozen lake, which is absorbed from the surrounding atmosphere. As a result, Absorb from the surrounding. Absorb from the surrounding. But when it is absorbing from the surrounding, that much amount of ice is being melted, and it will release the cold temperature in the surrounding. देखो, as a result, the temperature of the surrounding area and it becomes very cold. आगे. It is generally more cold after a hailstorm when ice melts than during or before the hailstorm. The reason Because more cold after hailstorms. After hailstorms, the ice, the hailstones बोल सकता हूँ मैं, they are releasing the heat energy. So that time it will be much cooler rather than before that. Okay. बोलो. The reason is that after the hailstorm, ice absorbs the heat energy required for its melting from the surroundings. So the मतलब temperature ice of the surroundings. hailstorms गिरे हैं, तो hailstones अभी जब जमीन पे गिरे हैं, तो they will absorb the heat energy and release their cold temperature in the surrounding. So during that time hailstones है, इसके लिए तो ठंडी रहेगी. So the temperature of the surrounding falls further down and we feel more cold. Okay. Yes. Excuse me, sir. Okay. एक मिनट. बराबर 45 मिनट्स में लेक्चर खत्म हुआ यार आज. Excuse me. सर ये भी बर्फ ही होता है ना क्या?